Good morning students. In this video we will study about the topic that is the power of the lens and power of the lens in combinations. This is the last theoretical topic which includes some short level numericals also, which we will solve in the next class or after covering this one topic. This is the last topic according to our NCERT book of this one chapter. So let me start this one topic. Power of the lens. Dear students, power of the lens means it is the ability or capacity of the lens to convert, it means to converge and diverge the light rays. This is the ability or capacity of the lens to converge or diverge the light rays. So and the power of the lens is denoted by capital P. Power of the lens is denoted by capital P. We will denote the power of the lens with the symbol that is capital P. And the SI unit of power of the lens, SI unit of power of the lens is diopter. DIOPTER, diopter, and in capital letter you can write down capital D. Diopter is the SI unit of power of the lens. यानी कि जो कोई भी लेंस है, चाहे वो कन्वर्जिंग हो या वो डाइवर्जिंग हो, तो उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है लाइट रेज को बैंड करने की टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस और अवे द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि कन्वर्ज करने की टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बैंड करना या उसको स्प्रेड आउट करना, उसकी जो पावर है, जो कैपेसिटी उसको बैंड करने की, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस. एंड वी विल डिनोट द पावर ऑफ द लेंस बाय द कैपिटल P and its SI unit will be always diopter. And in shortcut way or in short form we can write down capital D. So now in the case of numerical, for solving the numerical or for calculation of the power of the lens we will use formula. But dear friends, one situation is that if the focal length, because the formula of the power of the lens is denoted by P, and formula of power of the lens is P is equal to 1 upon F, where F means focal length of the lens and P means power of the lens. We will use this one formula, P is equal to 1 upon F, when the focal length is in meters. अगर हमारे को फोकल लेंथ जो है मीटर्स की फॉर्म में गिवन है, तो वहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और जो हमें पावर की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो डायरेक्टली किस में आएगी, डायप्टर में, बिकॉज द SI यूनिट ऑफ द पावर इज डायप्टर. Another one formula is that P is equal to 100 upon F. This one formula we will use when the focal length is given in centimeter. अगर हमारे को focal length सेंटीमीटर की फॉर्म में गिवन है, तो वहां पर हम इस सेकंड फॉर्म यानी कि सेकेंडरी फॉर्मूले का यूज करेंगे. We will use this one formula for calculation of power of the lens. Right, dear students? One more point is that by using this one formula and according to this one formula we can give one more definition of the power of the lens. And the secondary definition of power of the lens is that power of the lens is defined as reciprocal of the focal length. Reciprocal of the focal length is called power of the lens. Why? Because dear students, you can see that P is equal to 1 upon F. And 1 upon F is reciprocal of the focal length and it will be equal to the power of the lens. So that's why we can say power of the lens is also defined as reciprocal of the focal length. And the first definition we have cleared before in the starting of this one topic, that is the ability to converge or diverge the light rays is called the power of the lens. Right? These two formulas we will use for calculation of the power of the lens. If the focal length is in meter, then we will use this one formula, and if the focal length is in centimeter, then we will use this one formula. But by using these both the cases formula, the power will be in the form of diopter. इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज करें, अगर फोकल लेंथ मीटर में तो इसको यूज करेंगे, सेंटीमीटर में तो इसको यूज करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किसमें काउंटेबल होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डायप्टर, वेयर D मींस द SI यूनिट ऑफ द पावर. राइट? Now dear students, the last one topic of today's class is that power of combination of lens. Power of combination of lens means that if we want to attach, if we want to combine more than one lens parallel to each other,
अगर हम एक से ज्यादा लेंस को एक साथ एक दूसरे के साथ अगर एक कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं तो अटैच करने पर रिकम्बाइन करने पर वहाँ क्या होता है कि उस लेंस की पावर चेंज हो जाती है, यानी कि वी कैन से द रिजल्टेंट पावर ऑफ द लेंस विल बी चेंज. रिजल्टेंट पावर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन अदर वे इज कॉल्ड रिजल्टेंट पावर. अगर आप जैसे दो लेंस यूज कर रहे हैं तो दो लेंस यूज कर रहे हैं तो दोनों ही लेंस की सेपरेटली पावर अलग अलग है. तो उन दोनों को जब हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर उनकी रिजल्टेंट पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस. राइट स्टूडेंट्स? सो द इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, जब आप एक से ज्यादा लेंस यूज कर रहे हैं और वहां पर अगर आपको रिजल्टेंट पावर या पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड अप टू सो ऑन. यानी कि आपके पास जितने भी लेंस वहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है उनकी जो भी पावर्स आपको गिवन है, जैसे मान लीजिए आपके पास टू लेंस की सेपरेटली पावर है तो इनकी पावर्स का हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल्जेब्रिकल सम. क्या करेंगे यहाँ पर, एल्जेब्रिकल सम. तो एल्जेब्रिकल सम से जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा हम उसको विद साइन कंसीडर करेंगे एंड दैट विल बी द रिजल्टेंट पावर और कॉम्बिनेशन पावर ऑफ द लेंस. तो वो कॉम्बिनेशन पावर ऑफ द लेंस कंसीडर होगी. अगर हम इसी को पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को अगर हम फोकल लेंथ की फॉर्म में कंसीडर करें तो वन मोर फार्मूला वी कैन सी दैट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 plus 1/f3 and so on. This is the focal length. This is the resultant focal length of combination. This is the resultant focal length of the combination, and we can replace it by P. So we can say P is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 and so on. This is the another one form of combination of lens or resultant power of the lens. जैसे मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग लेंस हैं. एक लेंस है इसकी पावर है 10 डायोप्टर और दूसरा लेंस है जिसकी पावर है -5 डायोप्टर. डियर फ्रेंड्स, जो लेंस की जो पावर है वो लेंस के नेचर पे डिपेंड करती है. कैसे? बिकॉज वी नो दैट कन्वर्जिंग लेंस मींस कॉन्वेक्स लेंस एंड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. अगर कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है तो वहां पर फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो उसकी पावर भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो यानी कि हम पावर की वैल्यू को देखकर या फोकल लेंथ को देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि लेंस का नेचर कौन सा है या फिर लेंस कौन सा है. तो अगर एक प्लस में तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट लेंस की पावर है, एक माइनस में इसका मतलब ये डाइवर्जेंट लेंस की पावर है. डाइवर्जेंट लेंस की पावर क्यों है? क्योंकि डाइवर्जेंट लेंस का मतलब कॉन्केव लेंस और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है. तो जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसकी पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. तो हम वैल्यू को देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि लेंस का नेचर कौन सा है और लेंस का टाइप भी कौन सा है. तो अगर हम सपोज कर रहे हैं कि दो अलग अलग डिफरेंट लेंस हैं, अगर इन दोनों लेंसेज को अगर आपस में कंबाइन कर दिया जाए, एक दूसरे के साथ अटैच करके रख दिया जाए तो फिर रिजल्टेंट पावर क्या होगी. रिजल्टेंट पावर इसलिए क्योंकि जो लाइट रेज पास होगी वो इन दोनों ही लेंस से होकर के आगे प्रोसीड करेगी, आगे की ओर बढ़ेगी. तो उसकी रिजल्टेंट जो पावर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो चेंज होने से जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, इट मींस द पावर, actual power of the lens will be considered as a combination of the lens. So that's why we can calculate it by using this one formula, because both are given in the form of P. हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट will be P is equal to 10 plus minus 5, क्योंकि हमें यहाँ पे algebraical sum करना होगा. तो जब हम यहाँ पे रिजल्टेंट पावर कैलकुलेट करेंगे तो algebraical sum करेंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो रिजल्ट क्या बनेगा 10 minus 5, यानी रिजल्ट क्या आएगा प्लस 5 diopter. So it will be the resultant power of the lens. You can see these type of the numerical in your NCERT book also and your textbook or reference book also. So now dear friends, in the next class video we will solve numericals from our NCERT book based on the topic of power of the lens.